From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، جرنیل، نون لیگ، پی پی پی، الیکشن کمیشن، یہ سب مل کر پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. دھجیاں اڑا ہی نہیں رہے، فضا میں بکھیر رہے ہیں اور ہپ ہپ ہرے ٹائپ کے نعرے لگا رہے ہیں کہ لو کر لو جس کو جو کرنا ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے. آج خبر ملی کہ الیکشن کمیشن نے سنی تحریک اور پی ٹی آئی کو جو اقلیت کی اور خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں وہ دینے سے صاف انکار ہی کر دیا. لو کر لو گل. مطلب اتنی اس طرح کی بے حیائی چھائی ہوئی ہے. اب دیکھیے یہ کس طرف جائے گا، یہ بات کس طرف جائے گی، اور یہ بات کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے؟ یہ بات انہی کے کہنے پہ ہو رہی ہے جن کو میں ذل الہی کہتا ہوں. اچھا، دوسری خبر جو پڑھنے میں ملی وہ یہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کی وہ جو ہے کیس کی کارروائی جاری ہے. دیکھیے، ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کروایا گیا. کس نے؟ ایک فوجی جرنیل نے. فیصلہ کس نے دیا؟ انہیں ججز میں سے پورے بینچ نے، سوائے ایک آدمی کے، اس میں سے پورے بینچ نے. ٹھیک ہے نا؟ اگر مقدمہ ہی چلانا ہے تو جو زندہ ہیں، جو ججز ابھی، ان پہ مقدمہ چلاؤ تاکہ ایک مثال قائم ہو، کچھ انصاف کی راہ چلے. نہیں، یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. بس اس خوش کرنے کے لیے، تاریخ کو توڑ مڑوڑ کرنے کے لیے وہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھٹو صاحب کو کس نے مارا، کس نے مروایا تھا. اب آج پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے پیچھے بھی وہی جرنیل پڑے ہوئے اس کی جان کے. انہوں نے اس پہ قاتلانہ حملہ کروایا تھا، انہوں نے ہی اسے جیل میں بند کروایا ہوا ہے. کیا پتہ نہیں پوری دنیا کو معلوم ہے؟ اس کی جان کے لالیں اگر کل خدا نخواستہ اس کو مار دیں تو 30 سال بعد جو تاریخ پڑھی جائے گی اس میں پڑھایا جائے گا پھر ایک ایسا دور آیا جو دنیا کا سب سے مقبول ترین لیڈر پاکستان میں پیدا ہوا تھا، اس کو بھی ذل الہی نے مروا دیا. بھئی ان کی تو یہی ہسٹری رہی ہے نا آج تک. اچھا، آپ خیر آگے بڑھیے جلدی سے، کیونکہ ہم ذرا کم وقت ہوتا ہے تو جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم، چاچا ٹڈے دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں چاہتا ہوں سب لوگ مل کر بیٹھ کر آگے بات کریں، تم سے ملیں. یعنی ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے بعد گھر والوں سے کہہ رہا ہے اب میں آ گیا، ڈائننگ ٹیبل پہ آگے بیٹھ گیا، بھائی آؤ، سارے محلے کا سامان لوٹنے کے بعد اب ہم سے بات چیت کرو. بھائی آپ سے بات چیت کوئی نہیں کرنا چاہتا. آپ جو سامان لوٹا تھا برائے مہربانی وہ واپس کر دیجئے اور اپنی راہ لیجئے. عجب تماشا ہے. ثبوت موجود تھے پہلی دفعہ بھی کہ انہوں نے 1100 ارب روپے کے قرضے معاف کروائے. پہلے مہینے میں نیب کی ٹیبل پہ جا کے یہ بیٹھ گئے تھے اور ان کو دوبارہ لایا گیا. یہی لائے ہیں جو پہلے لائے تھے جرنیل، ان کو اب لائے ہیں. اچھا، تو تیسری دلچسپ خبر آئی تھی مریم نواز ہندا کی طرف سے کہ ان کا ایک سافٹ امیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ایک اسکول میں پہنچی اور وہاں جا کے انہوں نے بچیوں سے پوچھا کہ بھئی آج کیا پڑھائی ہو رہی ہے، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو ایک بچی نے کہا ہم کنجکشن پڑھ رہے ہیں. اچھا، کنجکشن آپ جانتے ہیں نا، فار، اینڈ، ناٹ، یٹ، اسٹل، بٹ، جو لفظ دوسرے سے ملاتا ہے گرامر میں. تو وہ سمجھیں، کہنے لگیں اچھا تو جیوگرافی پڑھ رہے ہو، بہت خوب. یعنی یہ خاتون، اس خاتون نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے؟ اتنا سبھی نہیں پتا کہ گرامر میں کہاں اور جیوگرافی کہاں، کیا دماغ ہے. ویسے اس خاندان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. محنتی تو یہ ہے، میں مانتا ہوں، چالاک بھی بہت ہیں، مفاد پرست بھی بہت ہیں، لیکن ذہنی طور سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہے معاملہ. اچھا، مجھے یہ ایسے کنجکشن پہ ایک اردو کی کنجکشن ٹائپ کا شعر یاد آ گیا، وہ بھی سن لیجئے کیونکہ بڑا ثقیل موضوع ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا لائٹ رکھنا چاہیے. جون بھائی کا ایک شعر تھا، اس میں اردو کے الفاظوں کی ترتیب دیکھیے. اس میں انہوں نے کہا شرم، دہشت، جھجک، پریشانی،
शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, मैं, मगर ये सब कुछ क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? उस ज़माने में दरअसल घरों में भी था कि मियाँ बीवी जो है मियाँ का ज़रा नाम नहीं लेते, बड़ा अजीब व गरीब दौर था साहब वो। अच्छा, बहरहाल उसमें लफ्ज़ों की तरतीब जो उसका जो कंजक्शन था वो बहुत खूबसूरत था। शर्म, झिझक, दहशत, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। अच्छा, अब आइए एक बहुत ही सीरियस मौजू की तरफ, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान आज गुर्बत में है, कर्जदार है, दुनिया की नज़रों से गिरा हुआ मुल्क है, और उस मुल्क के पास दावा ये किया जाता है, जो सही है, कि $6 ट्रिलियन के माफ़ कीजिएगा, $6 ट्रिलियन के अनटैप रिसोर्सेज हैं। जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो वो इतना कर्जदार क्यों है? वो कर्जदार इस वजह से है, वेरी स्ट्रेट आंसर, करप्शन, नाक़िस मंसूबे, ख़राब फॉरेन पॉलिसी, जर्नैल, नून, पीपीपी और तमाम करप्ट माफिया, इन्होंने मिल के ये एक क्लब के मेंबर बन गए हैं, और ये उन ज़खायर की तरफ तवज्जो कम और अपने माल बनाने की तरफ तवज्जो ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये देख चुके हैं, पूरी दुनिया जानती है, किताबों में पढ़ा रही है जरदारी के किस्से। वो सदर है, वाह वाह, और वो वज़ीर आज़म है, उनके सबूत मौजूद थे। नेक्स्ट डे उन्हें जेल में जाना था, बाजवा ले गए, वज़ीर आज़म बनवा दिया। अच्छा, अब चंद हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ और आप उस पर बाकी रिसर्च कर लीजिएगा। देखिए, जर्नैलों ने हर किस्म के करप्शन में हिस्सा लिया है। इतने बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं, सीमेंट हो, ठीक है ना, पंखे बनाने हो, बेकरी बनानी हो, निटवेयर का बिज़नेस है, सिक्योरिटी का बिज़नेस है। सिक्योरिटी का बिज़नेस तो होना चाहिए उनके पास, कोई बुरी बात नहीं है। कोई तामीर हो रही हो वो भी अगर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हर वो बिज़नेस जहाँ ज़रा से भी पैसे नज़र आए, वहाँ पे फ़ौज जो है अपना काम कर रही है। और फिर लोकल मार्केट का आदमी उनसे कैसे कम्पीट करेगा जो पूरा टैक्स भी नहीं देते और जिनसे कोई ज़रूरत ही नहीं कर सकता टैक्स मांगने की। तो इन्होंने बड़ी रकम दूसरे ज़राए से भी जो है नोची है, और ये सब आपके सामने है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, आप ज़रा ये देखिए कि जरदारी और नवाज़ इन्होंने जो भी मंसूबे आज तक साइन किए उसमें ज़बरदस्त धांधली की, बड़े बड़े करप्शन बनाए। बिजली के मंसूबों पे देख लीजिए जो डील बनाई, वो किस कदर ख़राब डील बनाई। ये एक ऐसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसी भी कौम को आप जाके बताएं तो वो कहेगी अपना सर पीट लो या अपना गिरेवा चाक करके जंगल में निकल जाओ। ये ऐसा कैसे मुमकिन है? इन्होंने वो IPP वालों जो एनर्जी सेक्टर के लोगों से कहा, आप महीने में हम बिजली इस्तेमाल करें न करें, आपको आपका की रकम मिलती रहेगी। बहुत खूब, हम अपना कमीशन उसमें से काट लेंगे, माल बना लेंगे और आपको देते रहेंगे। ज़रा सोचिए कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, मुझे बताइए गवादर का क्या बना? अरे इतने मंसूबे, अगर किसी और कौम के पास इनमें से एक भी मंसूबा होता तो तकदीर बदल जाती। इन्होंने अपनी तकदीरें तो बदल ली, कौम की नहीं बदली। गवादर का क्या हुआ मुझे बताइए? वहाँ लोग ज़मीनें खरीदते, ना वहाँ बिजली है, ना क्या डिज़ास्टर किया, नाक़िस मनसूबा बंदी एंड करप्शन। CPEC का क्या हुआ है? देखिए, कहते हैं चाइना ने $65 बिलियन यहाँ दिए, खर्च किए, तो वो कहाँ हैं? नवाज शरीफ से पूछिए। अच्छा, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, किस अंदाज से नहीं लूटा है। अगर इनको इमरान को रिप्लेस करना था तो इनको चाहिए था कि उस जैसा कोई लाते। ये सबसे ख़राब दिमाग के लोगों को ले आया जिनका रिकॉर्ड सिवाय करप्शन के और कुछ नहीं है। अच्छा, अब इमरान को देखिए। इमरान जब आया तो उसने IPP के ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको रीनिगोशिएट किया और पाकिस्तान को 836 बिलियन रुपीस बचा के दिए। फिर इमरान ने CPEC पे चाइना वालों से जाके कहा कि भाई ये चीज़ें गलत हो गई, इसमें हमारा हक ज़्यादा, हिस्सा ज़्यादा बनता है, वो निगोशिएट किया। इमरान ने एक कंपनी थी KKEU के नाम से, गालिबन तुर्की की, 1.2 बिलियन का उसका हर्जाना था हम पर। उससे बात की, उर्दुगान से कहा यार हम नहीं दे सकेंगे, ये माफ़ कराओ। इमरान कर्ज़े माफ़ कराता है, ये लोग कर्ज़े लेके खा जाते हैं। ये सारा मंज़र हम और आप देख रहे हैं और ख़ामोश रहें। हम नवा, मैं भी कोई गुल हूँ कि ख़ामोश रहूँ। अब आइए ज़रा रेको डेक की तरफ चलिए।
अच्छा देखिए, रेकोडिक पे जहाँ पे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कानें हैं सोने की, तांबे की दूसरी सबसे ज़्यादा कहते हैं बड़ी कानें हैं, वो मुल्क जिसके पास पहाड़ है, समंदर है, 4 मौसम हैं, दरिया है, समंदर है, सब कुछ है, वो कर्जदार है, गुर्बत का शिकार है इनकी वजह से। इन्होंने रेकोडिक में भी जो वो किया मुआहदा, जल्दी से पैसे बनाने, अपने पैसे पहले पकड़ते हैं ये कि जल्दी से पैसे मिल जाए। उस पर कितना बड़ा जुर्माना हुआ पाकिस्तान को, $11 बिलियन का जुर्माना हुआ, जिसको जाके इसने निपटाया। किसने? इमरान खान ने, कि ये वो हम नहीं अदा कर सकता, ये गलती हो गई और ये हुआ। और शौकत अजीज़ ने बड़ा अच्छा इस पर इनके साथ बड़ा अच्छा काम किया था मिलकर इन दोनों ने, और वो $1 बिलियन के करीब शायद फिर वो हुआ था, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन ये मुझे याद है $11 बिलियन का जुर्माना था। कितनी बड़ी रकम। इमरान ने क्या किया है कि गिलगित में वो बनाया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना, टूरिज़्म बढ़ाने के लिए। और टूरिज़्म जो है वो पूरी दुनिया में कितना बड़ा मतलब सरमाया है, उसमें कितनी बड़ी रकम है, दौलत छुपी हुई है वहाँ। उन दिनों जिन दिनों ये काम हो रहा था तो यकीन जानिए लोकल टूरिज़्म बढ़ गया था। ख़ुद पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ इतना जाना शुरू कर दिया था कि उससे बहुत बड़ी रकम हासिल होने लगी थी। और हमारे एक दोस्त हैं आफ्ताब इकबाल साहब, उनके पास बड़ा एक उन्होंने कम्प्रहेंसिव प्लान बनाया था टूरिज़्म को प्रमोट करने का। उस आदमी की बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज है और वो बला का एडमिनिस्ट्रेटर है, बला का। ख़राब तरीन हालात को भी वो मेंटेन करता है, लोगों से काम निकलवाना जानता है। हमने भी यहाँ से रेकमेंड की थी कि भाई अब जब वो मिनिस्ट्री आए तो वो इस आदमी को दी जाए, ये कैपेबल हैं, ये डिलीवर कर सकते हैं। खैर एनीवे, टूरिज़्म का पट्टा बैठ गया, क्यों? उनको हटा दिया गया। फिर एक और चीज़ आपको याद होगा कि कराची से कुछ आगे वो एक बंदर आइलैंड दरियाफ्त हुआ, तो उस पर UAE वाले $100 बिलियन खर्च करने को तैयार थे। तो वहाँ से जरदारी ने शोर मचा दिया, कराची हमारा है, सिंध का हिस्सा है और सिंध देश बना देंगे वरना। अब वो इमरान ने बहुत समझाया और बहुत सच्चाई से समझाया कि सिंध का इतना हिस्सा होगा, वफाक का इतना होगा, लेकिन वो डील ख़त्म हो गई। यानी जब तक कौमी एहसास नहीं दिलों में जागेगा, ईमानदारी सच्चाई अपनी जगह नहीं बनाएगी, ये लोग ऊपर ऊपर से लूट कर खुश हैं। अगर इनको सही अंदाज़ा हो जाए पाकिस्तान का, तो ये वहाँ तक इनकी निगाह सोच जाती ही नहीं है कि $6 ट्रिलियन के जिसके पास असासे हों, उस मुल्क को कहाँ होना चाहिए। वो कर्जदार है, वो लोगों से जाके कर्जा मांगता है। ये कितनी शर्म की बात है। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं और चाहते हैं कि मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि हम कोई राह देख सकें, दिखा सकें। अगर आप भी ऐसा समझते हैं, पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, तो हमारी आवाज़ को सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो ऑन YouTube, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय से ज़रूर नवाजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।